Hello friends, welcome to Arivar Tutors. Now this is Drishti Bhartiya. Let us talk about May 2021 related current affairs. This is very most important topic for exams like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway, CGL, SSCGL, CHSL, RRB and other competitive examination point of view. So guys, please subscribe our channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. So guys, let us we talk about 6 of May 2021 related current affairs. आज हम बात करेंगे 6 मई 2021 से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स की. But before this, let us we talk about some important news headlines related to the 6th of May 2021. So the first important news headline of today's is Indian Army launches first solar plant in North Sikkim. The Indian Army recently launched the first green solar energy harvesting plant in Sikkim. It was launched to benefit the troops of the Indian Army. The plant was vanadium-based battery technology. It was built at an altitude of 16,000 feet. The capacity of the plant is 56 kilowatt and was completed in collaboration with IIT Mumbai. हमें पता होना चाहिए कि भारतीय सेना ने उत्तर सिक्किम में पहला सोलर प्लांट लॉन्च किया है. भारतीय सेना ने हाल ही में सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है. इसे भारतीय सेना के सैनिकों को लाभ पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया था. प्लांट वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करता है. इसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया था. संयंत्र की क्षमता 56 और 56 kVA है. यह IIT मुंबई के सहयोग से पूरा हुआ है. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. Next important news headline of today's is Maria Ressa conferred UNESCO's World Press Freedom Prize 2021. Maria Ressa has been named as the 2021 laureate of the UNESCO's or Guglielmo Cano World Press Freedom Prize. The $25,000 prize recognizes outstanding contribution to the defense or promotion of press freedom, especially in the face of danger. According to UNESCO, the prize was named after Guillermo Cano Iazza, the Colombian journalist. हमें पता होना चाहिए कि मारिया रेसा को यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है. मारिया रेसा को यूनेस्को और गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के 2021 पुरस्कार विजेता के रूप में नामित किया गया है. $25,000 का पुरस्कार यूनेस्को के अनुसार विशेष रूप से खतरे की स्थिति में प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा या सर्वधन में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है. इस पुरस्कार का नाम कोलंबियाई पत्रकार गुलियर्मो कैनो इसाजा के नाम पर रखा गया था. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है मारिया रेसा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन ऑफ टुडेज इज पेप्सिको फाउंडेशन पार्टनर्स विद सीड्स टू सेटअप कोविड केयर सेंटर्स. हमें पता होना चाहिए कि बहुत ही फेमस कंपनी है पेप्सिको. सो पेप्सिको फाउंडेशन, द philanthropic arm of PepsiCo, said it and partner with the not for profit organization Sustainable Environment and Ecological Development Society to launch a community COVID-19 vaccination drive and set up COVID care centers to focus on Maharashtra, Punjab, West Bengal, Uttar Pradesh and Telangana. हमें पता होना चाहिए कि पेप्सिको फाउंडेशन कोविड केयर सेंटर स्थापित करने के लिए सीड्स के साथ साझेदारी कर रहा है. पेप्सिको की परोपकारी शाखा पेप्सिको फाउंडेशन ने कहा है कि उसने सामुदायिक कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करने और कोविड केयर सेंटर स्थापित करने के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट और सीड्स सोसाइटी के साथ साझेदारी की है. महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए साझेदारी के हिस्से के रूप में सीड्स बड़े पैमाने पर समुदाय के लिए कोविड-19 टीकाकरण चलाएंगे. बेड और चिकित्सा सुविधा से लेस कोविड केयर सेंटर स्थापित करेंगे जिनमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी शामिल है. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है पेप्सिको फाउंडेशन अलॉन्ग विथ सीड्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन ऑफ टुडेज इज Armed Forces launches OP Ko-Jeet for mental health of COVID patients. The armed forces have launched Operations Ko-Jeet or COJEET
to aid anti-COVID-19 efforts like strengthening the medical systems in India and oxygen supply chains. Along with these, Kojit also take measures to ensure the mental well-being of people. Apart from medical therapy, patients necessitate the assurance that they will be fine, and at times this is all they need to gain back self-confidence and courage. सशस्त्र बलों ने कोविड रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए ऑपरेशन कोजीट लॉन्च किया है। सशस्त्र बलों ने भारत में चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने और ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखलाओं की तरह एंटी कोविड-19 प्रयासों की सहायता के लिए ऑपरेशन कोजीट और COJEET शुरू किया है। इसके साथ साथ कोजीट लोगों की मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए भी उपाय करता है। मेडिकल थेरेपी के अलावा रोगियों को इस आश्वासन की आवश्यकता होती है कि वे ठीक हो जाएंगे, और समय के साथ उन्हें आत्मविश्वास और साहस वापस पाने की आवश्यकता होती है। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। आर्म्ड फोर्सेस ने लॉन्च किया है कोजीट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन ऑफ टुडेज इज द लास्ट वन। वर्ल्ड लार्जेस्ट एरोप्लेन बाय स्ट्रेटोलॉन्च completes test flight. The world's largest aeroplane, designed to transport hypersonic vehicles and facilitate easy access to space, soared into clear skies over California's Mojave Desert. The company Stratolaunch designed it to transport hypersonic vehicles and facilitate easy access to space. हमें पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज जो कि स्ट्रेटोलॉन्च द्वारा बनाया गया है, इस हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया है, और यह कैलिफोर्निया में मोजेवे रेगिस्तान में अधिक स्पष्ट आसमान में अंतरिक्ष तक आसानी से पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है। अपनी कंपनी स्ट्रेटोलॉन्च ने इसे हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन और अंतरिक्ष तक आसानी तक पहुंचने के लिए डिज़ाइन किया था। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, स्ट्रेटोलॉन्च द्वारा बनाया गया है ये, और ये दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज है और एरोप्लेन है। सो गाइज, नाउ लेट अस वी टॉक अबाउट 6 May 2021 रिलेटेड करंट अफेयर्स। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, लॉन्च्ड पुस्तक ट्रेल ऑफ द टाइगर उद्धव बालासाहेब ठाकरे अ जर्नी के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च्ड बुक ट्रेल ऑफ द टाइगर उद्धव बालासाहेब ठाकरे अ जर्नी? सो आंसर इज राधेश्याम यादव। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, राधेश्याम यादव जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी SII ने यूनाइटेड किंगडम में कितने करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर SII announced how many crores to invested in the UK? So answer is 2,457 crores. Important है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, किस राज्य के मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? विच स्टेट स्टार्टेड चीफ मिनिस्टर चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम? सो आंसर इज राजस्थान। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लागू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, महाराष्ट्र राज्य ने अपनी कितनी सिटी बसों को एम्बुलेंस में बदला है? महाराष्ट्र स्टेट कन्वर्टेड हाउ मेनी ऑफ इट्स buses into ambulances? सो आंसर इज 25। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, 25 सिटी बसों को एम्बुलेंस में बदला गया है महाराष्ट्र राज्य में, एंड कैपिटल ऑफ स्टेट महाराष्ट्र इज मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? When was World Hand Sanitization Day was celebrated? So answer is 5th May. Next question number 6 is, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2020 का विषय क्या रखा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया? What was the theme of World Hand Sanitization Day 2021? So answer is seconds save lives, clean your hands. Seconds save lives, clean your hands is the theme of World Hand Sanitization Day celebrated on 5th May. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज, पेप्सिको फाउंडेशन ने कोविड-19 स्थापित करने के लिए
किसके साथ समझौता किया है? Who entered into an agreement with the PepsiCo Foundation to establish COVID-19 care centers? So answer is Sustainable Environment and Ecological Development Society और सीड्स। जैसा कि हमने पढ़ा है, इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि पेप्सिको ने सीड्स के साथ समझौता किया है कोविड-19 हेल्थ केयर सेंटर्स बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज किसने चौथी बार स्नूकर में विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? Who won the world championship title in snooker for the 4th time? So आंसर इज मार्क सेल्बी। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, जैसा कि हमने कल पढ़ा है कि मार्क सेल्बी ने स्नूकर खिताब जो है विश्व का ये चौथी बार जीता है। इन्होंने 2016 में, 17 में, 2014 में भी और अब 2021 में ये चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज किसे फिक्की लेजेड ऑर्गेनाइजेशन और FLO का 38वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है? Who was appointed as 38th national president of FICCI और FICCI Ladies Organization FLO? So answer is उज्ज्वला सिंघानिया। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, उज्ज्वला सिंघानिया को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का 38वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज किस कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज का सफल उड़ान परीक्षण किया है? सो विच कंपनी डिड द सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरप्लेन? सो आंसर इज स्ट्रेटोलॉन्च। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, जैसा कि हमने पढ़ा है, स्ट्रेटोलॉन्च ने अपनी सबसे बड़ी हवाई जहाज, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज बनाया है, उसका सफल परीक्षण किया है, जो कि एक डेजर्ट में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज ICC ने खिलाड़ी नुवान जोयसा पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? ICC बैंड प्लेयर नुवान जोयसा फॉर हाउ मेनी ईयर्स? सो आंसर इज 6 साल और 6 ईयर्स, सॉरी, इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि 6 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज सशस्त्र बलों ने कोविड-19 के मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस ऑपरेशंस को लॉन्च किया है? डिफेंस फोर्स लॉन्च द कोविड-19 ऑपरेशन फॉर मेंटल हेल्थ पेशेंट। सो आंसर इज कोजीट ऑपरेशन। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि आर्म्ड फोर्सेस ने कोविड-19 ऑपरेशंस के मेंटल हेल्थ पेशेंट्स को सिक्योर करने के लिए कोजीट ऑपरेशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? हु वॉज अवॉर्डेड यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021? सो आंसर इज मारिया रेसा। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, मारिया रेसा अ फेमस जर्नलिस्ट अवॉर्डेड द यूनेस्कोज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज किस देश ने इबोला के प्रकोप के अंत की घोषणा की है? Which country announced the end of Ebola virus outbreak? So answer is कांगो। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, कांगो देश ने इबोला वायरस के प्रकोप के अंत की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज मानस बिहारी शर्मा जी का 78 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानस बिहारी शर्मा डाइड एट द एज ऑफ 78। व्हाट वाज ही वाज फेमस? सो ही वाज फेमस साइंटिस्ट। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि मानस बिहारी शर्मा जी ने एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है एज अ साइंटिस्ट और वैज्ञानिक। ये पद्म भूषण से भी सम्मानित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज किस राज्य में गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की गई है? इन विच स्टेट गोपबंधु संबंधिका हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च्ड? सो आंसर इज स्टेट उड़ीसा। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, एंड कैपिटल ऑफ स्टेट उड़ीसा इज भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज पश्चिम बंगाल राज्य की तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बनी है? सो हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट फॉर द 3rd टाइम? सो आंसर इज ममता बनर्जी। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज मानस बिहारी वर्मा जी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? सो अगेन मानस बिहारी वर्मा हैज डाइड। What was he was famous? So he was especially aeronautical scientist. Important है, हमें याद रखना है। Next question, question number 19 is गोल्डमैन सैक ने वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोल्डमैन सैक एस्टिमेटेड व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज GDP टू बी इन द ईयर 2022? सो आंसर इज 11.1%। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज
भारतीय सेना ने अपना पहला हरित और ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? Where did Indian Army set up its first green solar power plant? So आंसर इज सिक्किम। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, सिक्किम राज्य में जो है भारतीय सेना ने अपना पहला हरित और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट सिक्किम इज गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इज किस राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट पिनराई विजयन रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट? सो आंसर इज केरल। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट केरला इज तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज किस राज्य के मुख्यमंत्री एडप्पी के पल्लस्वामी ने अपना पद से इस्तीफा दिया है? चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट एदापद्दी के पल्लनस्वामी रिजाइन फ्रॉम स्पोर्ट? सो आंसर इज तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, तमिलनाडु राज्य के भी जो मुख्यमंत्री थे एडाप्पी के पलानस्वामी, इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट तमिलनाडु इज चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स कब मनाया गया? सो व्हेन वाज इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स सेलिब्रेटेड? सो आंसर इज 5 May। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स 2021 की थीम क्या रखी गई? सो व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स 2021? सो आंसर इज फॉलो द डाटा, इन्वेस्ट इन midwives. I repeat, follow the data, invest in midwives is the theme of International Day of Midwives celebrated on 5th May. Next question, question number 25 is the last question today. CRID के संस्थापक कौन है जिनका निधन हुआ है? So, who was the owner of CRRID who was died recently? So, answer is रशपाल मल्होत्रा। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। सो गाइज, आई होप आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो हमने बारी बारी से डिस्कस करे हैं। सो आप प्लीज़ इसे लिखिएगा, याद करिएगा और समझिएगा भी। और अगर आपको इनसे रिलेटेड क्विज की भी ज़रूरत है तो आप टेलीग्राम से भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की भी लिंक मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड विथ आर्यवर्त ट्यूटर्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ। आई होप गाइज आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक अवेलेबल हो पाए। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अब टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इन सब की लिंक मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, योर सपोर्ट इज़ आवर पावर। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड विथ आर्यवर्त ट्यूटर्स। थैंक यू।